in between. Once you can find this particular, huh? Once you find this particular view of a slide, don't do anything. So you are supposed to watch this slide and listen up to the open discussion. In between, if you have any problem, you can write in a chat box. Otherwise, please don't do any experiment or learning by doing in trial and error manner. So, am I audible to all? Yeah. So I hope everyone can see this slide. And welcome to Friday Forum organized by Indian Society for Training and Development Anand chapter. Those who are a regular participants, they know this every Friday for last 1.5 years. We are doing this particular Friday Forum in ISTD Anand. So after the Corona problem, for few Fridays we took a break, and then suddenly Zoom and Google Meet and all other kind of platform helped us to contact and interact with the delegates. So we started for last 1.5 month on earlier we did on a Zoom, and then we shifted from last Friday with the help of Divyang Bhai on a Google Meet. So last Friday also it was very interesting topic. So in the same series today I thought to interact with you, and I choose to talk on a futuristic perspective. Let's re-engineer the life. Okay, can I have next slide, Divyang? So let us first, on a prima facie, understand the meaning of a re-engineer. Actually, this particular word re-engineer come from a business process re-engineering, which was a concept in a management introduced by so many companies at a corporate level. It basically, in that context, means redesign in terms of a device and machine. So how to redesign the device and machine used in the corporates. And they have re-engineered the devices to produce a wider application. So this is what the example, the way the term is used, right? Like you could see that re-engineering of so many products. Earlier, when they try to make the device a dual function, like tape recorder and radio, and then you can now add internet and television. So your television become a personal computer. So that is also redesigning of a computer as well as the television. So how to add two functional devices, and you can create a new functional devices. Same is the case with a mobile also, right? Like mobile is basically for a communication purpose, but then later on the companies in their R&D department thought to add so many functional values with the mobile phone. And that's why even if today, if you can make out a list that how many products killed by mobile phone, then time to time it adds so many valuable functions like alarm or your diary, or at the last when the phone become a smartphone, it may replace the human being or human mind also, as some people thought, which may not be the case. But that is what the principles of re-engineering applied in deriving the smartphone what we have today. So basically, it may be in a broader perspective, a restructure a company or a part of its operation, especially by exploiting information technology. So after the phenomenon of information technology and digital platform and everything, you could see a further restructuring of not only devices and machine, but the way people do the business, like Zomato and cab services and so many other aspects come out with that. And because of this COVID problem also, you could see that how we restructure so many things, right? So this is what the basic meaning of a restructure or redesign or a re-engineer. As and when the need arise,
we try to modify and alter the functional values of a particular device, or we can extend this particular concept up to our life also. So I said in future how we will re-engineer our life. So rethinking and redesigning the way we conduct the work and the way we do the work. So not only in a nearby future, but in a long run also how we could re-engineer our life. So this particular topic we are not going to discuss confining to a post-COVID or a post-lockdown period, but in our rest of the life, how this particular concept will be useful to you, useful to us, right? So this is the way we are taking this particular topic. Can I have next slide, Divyan? Bill Gates, right? Bill Gates is always one of my favorite thinker. Not a businessman, but a thinker. Like as he wrote a book, Business at the Speed of Thoughts. And once he complete his career as a businessman, he emerged as a great philanthropist also, right? Philanthropist also. Like he did so many philanthropy and social cause activities, and made a social foundation also where he tried to help so many people. He is a very genius person, right? Giving a lot of new ideas. So he said an important re-engineering principle is that companies should focus on their core competence and outsource everything else. Now, that's a big thing, you see. He said re-engineering means you focus on your core competence and the other things you can outsource. So during this COVID or in the post lockdown also, so many people try to be unrest, and then they are facing a stressful situation, and then they thought to switch from one domain to the other domain. So but then up to what extent it is appropriate to deviate from your core competence, and your core competence will remain relevant or not, that's also a question to ask and answer. But with this thought from the Bill Gates, let us keep in mind this thing, core competence, and the other things what you can outsource from others. So that can be helpful in our life re-engineering or not. That reference we will take at the later part of the discussion. So let us have a next slide. You could see this particular news in the newspaper, right? In fact, it was started from Rajasthan, where one of the jewelers started selling the vegetables because they were not allowed to sell the jewelries, because jewelries are not an essential commodity, right? Required as a basic necessity of a life to survive our existence. And during this lockdown, it was not allowed. But then the vegetables were allowed to trade. And then in Surat also you had this news in the newspaper, right? That somebody started the selling of a sabji from their original core competence business of jewelry. It may be a temporary phenomenon, but it is debatable whether it will be a long lasting, sustainable, flexible business or not. But that is a temporary re-engineer. That is what I want to say. And that at later stage it will be a matter of discussion that whether it is a temporary arrangement or maybe a lifetime arrangement. Only time will say. Next. Bill Gates, in his last interaction and in his lecture, he talked so many good things. One of the statement he made that humankind has never had more urgent task than creating a broad immunity for a coronavirus. So he is talking about a development of a vaccine. So he said it's an urgent need. So like in our life also, if we can think this particular topic, re-engineering our life, then at present we cannot discuss in isolation of the situation what we are facing. So everybody is very eagerly waiting for some medicine to cure this corona problem, right? So then at the next part, he talked in the next slide. He talked about some of the criteria, like when he was addressing
the community from research and development also, the pharmaceutical companies also. So he set some criteria that if many people are trying to develop a vaccine for the coronavirus, then he said a few criteria are very important. The first criteria is a speed, like how quickly we can made this particular vaccine for the cure of a corona. And then he said it will at least take 18 months. As you know, there is a certain set process to develop a particular new drug or a medicine. And then it will at least take 18 months by and large, right? So that is 18 months. We have to learn to live with corona for at least 18 months. The second is in terms of the potential and the functional values of that vaccine. So the efficacy, like how efficient that new medicine will be to cure the corona, and safety. So safety part talk about the side effect as well as the other aspect of the health. So he said if it is 70% effective as well as safe, then also it will be okay. So 70% can be the acceptable standard if some companies can find out medicine for it. Then manufacturing and distribution. So the question is how many doses of vaccine we required uh, to save the entire world. Then today, if we can take a base that the total population of the world is 7 billion, that is 700 crores, then he said with one dose it may not be sufficient. So at least we required a 2 dose of medicine, right, as a vaccine. So 14 billion dose may be a minimum production once it is invented is required. So it is in terms of the scale at which we want to produce this particular medicine. And the last one is who will get it. So we have to decide a priority also, right? Who will get it? Because the world is divided into have and have not. So who will get first? And then who will get second, next? And why somebody should get first? And how somebody will get first and last? So these are all the dynamics that the world will face and have to find out your own bargaining. So this is what, in terms of purely in a corona to re-engineer the life, one vaccine will re-engineer the life after a COVID problem, and these are the criteria. Now, same criteria we may be referring in terms of re-engineering our life also. That how quickly we will be normal after this problem. What about our efficiency? How we can take care of our safety, as we want livelihood also and our life also, and how quickly we can reach to the scale at which we were working and we should be working in future. And of course that whatever the opportunities will be generated after the COVID problem or after the lockdown, as you see that 20 lakhs crore rupees injected by the government also. So who will get the share of that? There was a cartoon also, right, that 20 lakh crore. So who will get crore, who will get lakhs, and who will get rupees? So that's a question. So some group of people may get crores, some group of people may get lakhs, and some group of people may get thousands, some group of people may get hundreds, and some group of people may get rupees. So who will get it from that particular, huge public money going to be injected and infused in the economy? So these are all the points which going to re-engineer our life. But then in the midst of that, we were discussing this. Yeah, next slide, please. Yeah, so earlier also in one of the webinar, I particularly like this particular point very much, that we should make a clear-cut difference between a life which is post-corona or post-lockdown.
Now, post-corona life will start after 18 months, as you could see in the statement of Bill Gates also, that it will at least take 18 months. We wish that the vaccine may be invented earlier, and then it may take only 12 months, but then from now we can at least, ideally and realistically, uh, can assume that okay, 18 months we have to have a patience, and we have to wait, and we have to learn to live with corona. So post corona will start after 18 months, right? But post lockdown may start from Monday, or depending on the category of your area, red zone, orange zone, green zone, depending on that, your lockdown will be phase wise lift out. So that could be a post lockdown time. So from post lockdown to the post corona is totally different, right? It's just like a time between your engagement and marriage. And I know the time in between the engagement and marriage is very crucial and very different. So here we are going to face, if you are married, then second time, the sweet time in between post corona and post lockdown, and that will be the most sensitive time, because your long term relationship with your spouse will be decided by your relationship in between the engagement and marriage. So in between this post corona and post lockdown, how you will behave and how you will learn how to behave in such kind of pandemic will decide the efficiency of your life in rest of your life. Next slide, please. So let's check our core to change the context of a life. एक कॉन्टेक्स्ट मैंने ये रखा है कि ये कॉन्टेक्स्ट मैं मतलब जब इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था, तो मैं ये चाहता ही नहीं था कि मैं कोरोना या कोविड के बारे में बात करूं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि आई कैन नॉट इग्नोर द रियलिटी. सो अगर आप यहाँ आए हो तो आपके दिमाग में भी वही चल रहा होगा, क्योंकि दिन में भी आप बार बार वही सुनते हो, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, एवरीवन विल थ्रू द सेम इंफॉर्मेशन. तो वो आप उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं. तो इसीलिए मैंने आपको उसके बारे में जो भी दिग्गज है या जो भी एक्सपर्ट्स है वो क्या समझते हैं और उसको कैसे रैशनली समझते हैं, वो हमने एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया है. अब उस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हटके अभी हम टॉपिक में थोड़ा री इंजीनियर लेने वाले हैं, थोड़ा यू टर्न लेने वाले हैं. सो लेट अस चेक योर कोर to change the context of your life. I will be asking a few questions. It will be a self assessment question. You are not supposed to answer. If you wish, you can answer, but otherwise it's a matter of introspection. At later stage also you can think about the answers or probable answers of your question. But मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से और सीरियसली पढ़िए, थोड़ा अपने जहन में जोर डालिए और उसके आंसर ढूंढने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए. बाद में भी हम ये जो पीपीटी है वो अपने ग्रुप में शेयर करवाएंगे, तब भी आप वो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. तो लेट अस रिफर द फर्स्ट क्वेश्चन. I am worried about my future. So do you really worried about your future? The answer may be yes, answer may be no. You may agree to this statement, you may disagree to this statement, or you may not still think about this particular statement, right? You may be indifferent, you may not be able to decide whether I am worried or not. लेकिन हाँ, मतलब देखा जाए तो चिंता तो सबको है थोड़ी थोड़ी, है ना? और वो चिंता कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, वो नहीं पता है, लेकिन हाँ, चिंता तो थोड़ी बहुत सबको है और वो रहने वाली है. नेक्स्ट, आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर ऑफ माई फैमिली. मुझे अपने घर परिवार की चिंता होती है. तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये मुझे अपने घर परिवार की चिंता होती है. नेक्स्ट, आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन. कई लोग ऐसे बोलते हैं चलो हमारी लाइफ तो खत्म हो चुकी, हमारा तो जो कैरियर का जो होना था वो हो गया, अभी
हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अभी पहले तो क्या था कि हम ऐसे बोलते थे अमेरिका चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, लेकिन अभी तो वो भी मतलब इतने विश्वास से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि वहां क्या सिचुएशन है। और जब मुसीबत आती है तो अपना देश ही याद आता है ना। जैसे चोट लगती है तो माँ ही याद आती है। तो अब ऐसा ही है, दूसरे देश में जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है और हम फंस जाते हैं तो हमें हमारा देश याद आता है। तो आने वाले कई दिनों तक ये जो ऑप्शन हमारा अभी तक का था वो थोड़ा सा ब्लर होने वाला है। तो आगे जाके ये सब इश्यूज आएंगे, एक बार लॉकडाउन खत्म होगा तो ये सब इश्यूज हमारे सामने आएंगे। और जब हम आएंगे तब उसके बारे में सोचा भी जाएगा, और उससे पहले जो समझदार है वो तो अभी से सोचना भी शुरू कर दिया होगा। नेक्स्ट, I am fixed in my comfort zone. I have not tried anything innovative and path breaking because I don't feel need of it. तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ये स्टेटमेंट आपको एप्लीकेबल है कि मैं तो एक अपने कंफर्ट जोन में फिक्स हो गया हूँ, मुझे कोई अब जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ नया करने की जरूरत है। जो कुछ करेगी अब वो गवर्नमेंट ही करेगी, जो कुछ करेगा ये कोरोना ही करेगा, हम हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कई सारी सरकारी ऑफिस में जो गवर्नमेंट का तो आदेश ये है कि वो ऑफिस चालू रहनी चाहिए, लेकिन आप जब जो भी एसेंशियल सर्विस है, बैंक्स है या इंश्योरेंस है या तो कम्युनिकेशन रिलेटेड है, तो आप वहाँ ऑफिस में जाते हो तो लोग यही बोलते हैं अब अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो कोरोना है ना, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा। अभी जब तक कंप्लीट लॉकडाउन है तब तक ये सही है, लेकिन अगर यही आंसर की हैबिट हो गई आफ्टर कोरोना तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे कर्मचारी है, जैसे पुलिस फोर्स में बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स मिले हैं कि दे कम आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट अ इनोवेटिव वे टू एंगेज द पीपल एंड कल्टिवेट द हैबिट्स अमंग द पीपल। तो ऐसा भी हमें को देखने को मिला है। नेक्स्ट, I am not able to utilize my potential at the fullest possible extent. तो अभी ये जो सब क्वेश्चन है वो सिर्फ हम इस समय या ये जो स्पेसिफिक पीरियड है उसके दौरान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी आप देखो कि क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जो भी पोटेंशियल है, आपकी जो भी क्षमता है, उसके हिसाब से क्या आप संपूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं को काम पे लगा चुके हैं या लगा सकते हैं या नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट, nowadays I do not stand for what is right because I don't want to fight. I want complete peace of a mind. ये चीज भी एक देखने को आई है कि कोरोना तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में भी एक ऐसा स्टेज आता है जब यू डोंट वांट टू स्ट्रगल, राइट, यू डोंट वांट टू डिबेट, यू डोंट वांट टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। वो बोले चलता है, ठीक है, ऐसा ही है। जो एक उसमें सबसे बड़ा एक गुजराती में ऐसे बोलते हैं ना, सत्ता सामे શાણપણ ના જોઈએ। અને આ એક એવું સ્ટેટમેન્ટ છે કે જેનું મિસઇન્ટરપ્રિટેશન પણ ઘણી જગ્યાએ થતું હોય છે। જયદીપ ચૌહાણ, દિવ્યાંગભાઈ આ અમને કહીને કરવું પડશે, જયદીપ ચૌહાણ ને। यस, तो दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ थिंकिंग कि क्या हो रहा है, राइट। If you really want only complete peace of mind, then re-engineering is not possible, and that's why you could see what happened with the Kodak का तो क्लासिक केस है, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है वो तो जानते हैं Kodak कंपनी के साथ क्या हुआ। लेकिन हाल में ही मुझे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मालूम हुआ कि आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि सैमसंग कंपनी जब स्टार्ट हुई तो वो ड्राई फिश बेचती थी। मतलब शुरू शुरू के दिनों में जब कंपनी स्टार्ट हुई तो
1938 में जब कंपनी स्टार्ट हुई तो कई दिनों तक उसने दे सेल द ड्राई फिश ऑल्सो। तो अब ड्राई फिश बेचने वाली कंपनी, आप सोचो, री इंजीनियरिंग करते 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 आज क्या है। तो ड्राई फिश टू मोबाइल फोन एंड ऑल द latest gadgets by the Samsung company, right? Same is the case with the Nirma also. अभी कहीं हमारा वो एक ईपीएस चल रहा है, वहां पे कोई करसन भाई की बात कर रहे थे। तो करसन भाई जो साइकिल पे थैला लेके डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे, तो री इंजीनियरिंग अपनी लाइफ को करते करते अब यूनिवर्सिटी भी बना दी। अभी आप सोचो, द सेट ऑफ स्किल, द सेट ऑफ नॉलेज and the set of attitude what required to run a detergent manufacturing company and to run a university is altogether different. जो स्किल, जो नॉलेज और जो एटीट्यूड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाने के लिए चाहिए, उससे बिल्कुल विपरीत नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आपको यूनिवर्सिटी चलाने के लिए चाहिए। लेकिन वो दोनों मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जैसे बिल गेट्स ने कहा कि आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उसको पकड़ के बाकी की जो चीज है वो आउटसोर्स करवा सकते हैं। तो निरमा यूनिवर्सिटी को निरमा यूनिवर्सिटी चलाने के लिए बाकी की जो चीज है उसने आउटसोर्स की है, एंड दे आर रनिंग वेरी सक्सेसफुली टू डाइवर्सिफाइड बिजनेस। बट इफ दे नेवर थॉट to come out from their comfort zone in a particular domain to the other domain, and if they never diversified, then this particular re-engineering in the life of a Karsan Bhai or in the life of a Nirma could never been possible. So, लेकिन उसकी शुरुआत क्या से होती है? उसकी शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस से होती है। तो आप अपने आप को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस स्टेटमेंट के जरिए कि क्या ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। I accept my limits. Now I don't want to expect more from my life. मैंने अपनी लिमिट को जान लिया है, मान लिया है और स्वीकार कर लिया है। अभी इस लिमिट के आगे मैं नहीं सोच सकता, या इस लिमिट के आगे मुझे लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे आपने वो पंगा मूवी देखा होगा, है ना? तो पंगा मूवी में वो जो उसकी जो हीरोइन है वो बोलती है कि मेरे जीवन की लिमिट यही है, मतलब यहाँ ही आना, यहाँ तक ही आ सकती थी, इससे आगे मैं नहीं जा सकती। तो वो जब बॉम्बे जाती है और उसका सिलेक्शन फिर होता है कलकत्ता की टीम में, मतलब ईस्ट जोन में, तो वो वहां पे प्रैक्टिस करने नहीं जाना चाहती। तो उसकी दोस्त उसको पूछती है कि तो फिर यहाँ आई क्यों? तो देन शी रिप्लाइड कि मैं अपनी लिमिट जानना चाहती थी और मेरी लिमिट यहाँ तक ही है, इससे आगे मेरी पहुंच नहीं है। तो then she cross the limit, she in fact challenge her limit, and then what happened in her life. लेकिन कई लोगों को ऐसे लगता है कि बस अभी खत्म हो गया, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, right? So though I can do more for my family and society, but it's okay, I don't want any new initiative. तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये मेरी लिमिट नहीं है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो करके मैं अपने परिवार को ज्यादा भी खुशियां दे सकता हूँ या ज्यादा रिसोर्सेज भी दे सकता हूँ। लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब मुझे आगे नहीं करना है। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। सो दैट मे हैपन इन एनीबडीज लाइफ। नेक्स्ट। Yeah, so let us see the example, the classic example of an eagle, and it's a very famous example, right? Eagle जो होता है उसकी वैसे तो लाइफ 70 इयर्स की होती है, 70 इयर्स वो जीता है, लेकिन 40 साल जब वो अपने जीवन के कंप्लीट कर देता है ईगल, तो उसकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड क्रिटिकल स्टेज आता है। जब उसकी लाइफ में ये क्रिटिकल स्टेज आता है तो उसको एक डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन होता है डू और डाई। तो हम देखेंगे कि कैसे उसके जीवन में ये सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जो अगर
हमारी लाइफ के साथ जोड़ा जाए एट ए सर्टेन स्टेज, तो हमारी लाइफ में भी वो एक स्टेज आता है जैसे ईगल की लाइफ में आता है। तो ईगल की लाइफ तो 70 इयर्स है और इंसान की लाइफ 100 इयर्स है। तो मिड लाइफ में हमारे जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई स्टेज तो आता है जो ईगल की लाइफ में आता है। तो क्या स्टेज आता है, लेट अस सी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जब ईगल 40 साल का हो जाता है तो होता क्या है, 3 प्रॉब्लम उसको फेस करता है। द ईगल विल फेस 3 बेसिक प्रॉब्लम जिससे उसका जीना मुश्किल हो जाता है। पहला प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू देयर थिक फीदर्स इट ओल्ड हैवी विंग्स स्टिक टू इट्स चेस्ट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फ्लाई। उसके जो पंख होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं और वो पंख उसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं और उसके शरीर के साथ उसके पंख चिपक जाने की वजह से वो भारी हो जाता है और अपना वजन बढ़ जाने की वजह से वो हवा में उड़ नहीं सकता है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट, कि उसके जो पंख है वो बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि वो भारी हो जाता है और उड़ नहीं सकता। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इट लॉन्ग एंड शार्प बिक बिकम्स बैंड। उसकी जो चोंच होती है वो मुड़ जाती है और वो मुड़ जाने की वजह से क्या होता है कि वो अपने पंखों को काट नहीं सकता है। नॉर्मली तो ये होता है कि उसकी चोंच से जो पंख ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे हम बाल कटवाते हैं, वो पंख काट देते हैं, तो पंख वो काट देता है नॉर्मली तो, लेकिन वो चोंच मुड़ जाने की वजह से वो पंख काट नहीं सकता है। ये दूसरा प्रॉब्लम। अब तीसरा जो प्रॉब्लम है, इट्स लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टेलॉन कैन नो लॉन्गर ग्रैब द प्रे विच सर्व एज ए फूड। उसके जो नाखून होते हैं वो 40 साल की एज में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी चली जाने की वजह से जो वो स्पीड और इंटेंसिटी से अपने शिकार को पकड़ पाता है जमीन पे से, वो नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसके नाखून अभी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं या तो फ्लेक्सिबिलिटी जा चुकी है। इसीलिए वो उसको भूखा रहना पड़ता है क्योंकि जिस स्पीड और जिस इंटेंसिटी से वो पहले अपने शिकार को अपने नाखून से पकड़ पाता था वो अभी नहीं पकड़ सकता। इसीलिए वो शिकार नहीं कर पाता है और उसे खाना नसीब नहीं होता है और वो लाचार हो जाता है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। तो अब इस 3 प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसको क्या करना होता है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन द ईगल इज लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शन। उसके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, है ना, टू डाई और अंडरगो अ पेनफुल प्रोसेस विच लास्ट फॉर 150 डेज। या तो मर जाए क्योंकि वो उड़ नहीं सकता है, शिकार नहीं पकड़ सकता है, भूखा रहता है, तो मर ही जाएगा। तो या तो वो मर जाए या तो 150 दिन की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वो उसे फेस करनी है और उससे उसको पास होना है, जैसे हम लोग अभी पास हो रहे हैं। या तो हम किसी जीवन के स्टेज पे पास होते हैं उस प्रक्रिया से। तो वो क्या प्रक्रिया है हम देखते हैं। नेक्स्ट। This process of a change requires that eagle fly to a mountain top and sit on a nest. At the top of the mountain, eagle अपने घोंसले में बैठ जाता है और वो जो माउंटेन का टॉप होता है वहां पे उसको 150 दिन की ये जो प्रोसेस है उससे गुजरना होता है। तो पहले तो ही इट कंप्लीटली कट आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फंक्शन। उसको सिर्फ वो पर्वत की टोच पे जाके अपने घोंसले पे बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, टोटली कट आउट फ्रॉम ऑल द डेली रूटीन। उसको वहां ये पहले 150 दिन गुजरना है और इस 150 दिन में वो क्या करता है। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, देयर द ईगल पिक अ रॉक अंटिल इट्स बिक इज कंप्लीटली वॉर्न अवे। मतलब अपनी जो चोंच है वो पत्थर के साथ वो घिसता है, तो पत्थर पे उसकी चोंच से वो प्रहार करता है और उसकी चोंच को वो पत्थर पे रगड़ रगड़ के
वो तोड़ देता है। अब जब वो चोंच को उसके साथ टकराता है पत्थर के साथ, तब उसकी चोंच टूटती है और उसको दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, लहू निकलता है, और इट्स सो पेनफुल, बहुत ही पेनफुल होता है जब ये प्रोसेस होती है, क्योंकि अपनी ही चोंच को वो तोड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल होता है। आफ्टर वेटिंग फॉर इट्स बिग टू रिन्यू, द ईगल देन प्लक्स आउट इट्स ऑन क्लोन। तो अब जब अब जब नई चोंच आती है, क्योंकि एक बार चोंच टूट जाने के बाद उसको वेट करना होता है कि नई चोंच आ जाए। अब वेट करने के बाद जब नई चोंच आ जाती है, तो उसी चोंच से वो अपने नाखून को काट देता है। तो वो एक तो चोंच वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हालांकि वो पेनफुल था। उसके बाद उसको धीरज रखना पड़ता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस कि नई चोंच आ जाए। और वो चोंच आ जाने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, राह देख के जब नई चोंच आ जाए तो अपने नाखून को वो काट देता है। तो ये दूसरी प्रक्रिया है। अब जो तीसरी प्रक्रिया है, अभी ये कोई और किसी ने प्रेजेंटेशन मोड चालू कर दिया। નીરવભાઈ પાસે તો આવી અપેક્ષા ના રાખી શકાય, આપણે તો બહુ એક્સપર્ટ માણસ છે. હા, ત્રીજી પ્રક્રિયા આની પછીની સ્લાઇડ દિવ્યાંગભાઈ. When its new colon emerge, the eagle start plucking its time-worn feather. अब उसके देखो, एक तो चोंच नहीं आ गई, नई चोंच आ गई, उससे अपने नाखून काट लिए, और जब नाखून उसके कट गए तो उस नाखून से फिर जो एक्स्ट्रा जो फीदर्स थे, जो जो बड़े बड़े फीदर्स थे जो उसको उड़ने में मुश्किलें पैदा करते थे, वो फीदर्स पंखों को वो काट देता है। तो ये 3 प्रॉब्लम थे, और ये 3 प्रॉब्लम को वो ये 150 दिन में दूर करता है। नेक्स्ट। And after 5 months, the eagle take its flight of a rebirth and live for 30 more years. मतलब ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो 30 साल और जीता है। फ्रेंड्स, we also may be facing the same problem at any particular stage of our life. ये स्टेज किसी के जीवन में 25 साल में भी आ सकता है, 30 साल में भी आ सकता है, और ज्यादातर लोगों के जीवन में ये 40 के बाद आता है। मतलब when you reach to the age of 40, you will face the same 3 problem. How? Let us see. Next. देखिए, जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, thick feather, its old heavy wings stick to its chest, making it difficult to fly. उसके जो पंख होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको वो काट नहीं सकता है, राइट? ये ईगल का पहला प्रॉब्लम था। अब ये हमारा क्या प्रॉब्लम है कि we have to check our old beliefs and assumptions. Our wrong assumptions become sticky habits, so we cannot fly, and your perspective of a life become myopic and you have developed a blinked view of a life. होता क्या है कि जो हमारी जो पुरानी सोच है, या हमारे पुराने जो भी assumptions है या beliefs है, वो हमें घेर लेते हैं। हमने अभी तक जो सोचा है, सीखा है, उसी से हम जीवन को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, और इससे जीवन में एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि नया हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं और पुराना छोड़ना नहीं चाहते हैं। पुराना छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नई स्किल नहीं है अपने पास। इसीलिए ये जैसे ईगल की लाइफ में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हमारे जीवन में आ चुकी होती है। वो अननेसेसरी चीजों में सबसे ज्यादा अननेसेसरी चीज होती है आवर ओल्ड अजम्पशंस एंड बिलीफ्स। वो इतने स्टिकी हो जाते हैं, मतलब हमारे साथ इतने चिपक जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या तो हम उड़ नहीं सकते हैं। तो ये जैसे ईगल के केस में प्रॉब्लम होता है, अपने केस में भी प्रॉब्लम होता है। जैसे ये एक वो ऐसे लाइन है ना कि घोंसला बनाने में हम यूं ही मशगूल हो गए,
घोंसला बनाने में हम यूं ही मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे ये भी भूल गए। तो अब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो, इन सब के चक्कर में ऐसे बंध जाते हैं, जैसे ईगल बन जाता है कि हम उड़ना ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ईगल को आप सोचो क्या था, इट्स लॉन्ग एंड शार्प बिक बिकम्स बैंड, उसकी जो चोंच है वो मुड़ जाती है और उसके वजह से वो अपने पंखों को तोड़ नहीं पाता है, नाखूनों को काट नहीं सकता है, राइट। तो अब उसमें क्या हो सकता है, आप देखिए कि 40 इयर्स की लाइफ में या मिड करियर करियर क्राइसिस बोलते हैं जिसको, तो मिड करियर क्राइसिस में भी यही होता है। क्या होता है, एक तो रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे आपने स्टील बीम को देखा होगा तो उसमें एक जंग लग जाता है ना, तो ये रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ईगल के केस में जैसे उसकी चोंच मुड़ जाती है, अपने केस में क्या होता है, अपना जो नॉलेज हमने अभी तक जिस पे हमें गर्व था वो सब पुराना हो चुका होता है, तो द नॉलेज बिकम इररिलेवेंट, अपने पास जो भी नॉलेज स्किल होगी वो इररिलेवेंट हो चुकी है क्योंकि अभी जमाना बदल गया है। तो जैसे ईगल वल्नरेबल है वैसे ही हम हमारी लाइफ भी वल्नरेबल बन जाती है। देन डू यू थिंक यू हैव 100% पॉजिटिव एटीट्यूड इन ऑल सिचुएशन, तो उस टाइम में ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो भी धीरे धीरे नेगेटिव होता जाता है क्योंकि हमारी स्किल और नॉलेज है वो रिलेवेंट नहीं रहता है और उसी वजह से हम नेगेटिविटी की ओर भी थोड़े अग्रसर होते हैं। तो ये जैसे ईगल का प्रॉब्लम है, हमारा भी प्रॉब्लम है। ईगल की चोंच मुड़ गई है, हमारी स्किल मुड़ गई है, हमारा नॉलेज मुड़ गया है और दोनों बेकार हो चुके हैं और एटीट्यूड भी धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है क्योंकि हमारा अभी कुछ चलता नहीं है, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल जिस पे हमें भरोसा था वो अभी धीरे धीरे पुराना हो चुका है या हो रहा है। तो ईगल का ये प्रॉब्लम है, हमारा भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, problem number 3, it's a long and sharp becomes bent. Sorry, long and flexible talon cannot be longer grab the prey, मतलब वो शिकार नहीं कर पाता है। इसीलिए जब आपकी स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड इररिलेवेंट हो चुके हैं, मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं या तो आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपकी अहमियत कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आपकी बिलीफ्स एंड अजम्पशंस पुराने हैं। आपके बिलीफ्स और अजम्पशंस पुराने हैं तो उसी हिसाब के आपका नॉलेज और स्किल भी पुराने हो चुके हैं। जब आपके नॉलेज और स्किल भी पुराने हो चुके हैं तो नेचुरली you will face a problem in earning and learning. In both the case you face a problem. तो आपको क्या करना है, चेक योर लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। नोबडी एक्सपेक्ट यू टू डू समथिंग न्यू। अभी आप देखो आपकी एनर्जी और एंथुजियाज्म क्या है। कोई नहीं चाहता है कि आप कुछ नया करो, कोई नहीं चाहता है कि आप अभी कुछ ऐसा करो जो कोई नहीं कर रहा है। फिर वो चलता है, होता है, ऐसा ही है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, वो एटीट्यूड के साथ आप भी बह जाते हो। देन पीपल स्टार्ट टेकिंग यू अदरवाइज, लोग आपको ऐसे ही मतलब वाइज और अदरवाइज, तो ऐसे अदरवाइज लेने लगते हैं कि ठीक है अब ये तो बोलते रहते हैं या ठीक है इसको कोई पड़ी नहीं है। यू आर नो मोर एसेट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर फैमिली, राइट। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है यू आर नॉट कंसिडर एज एसेट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड इन योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि वो 40 से 50 के एज में जब आप कुछ नहीं करते हो या तो वो ईगल की तरह यू विल इफ नॉट पास थ्रू दैट प्रोसेस, तो लोग फिर आपको वैसे ही समझने लगते हैं या लोग आपको वैसे ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। सो चेक लेवल ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज ऑल टाइम लो। मतलब आप देखोगे कि मिड लाइफ करियर क्राइसिस में क्या होता है, और 40 तो एक मतलब एवरेज एज है, अदरवाइज वो कभी भी आ सकता है, मतलब वो 30 में भी आ सकता है, 35 में भी आ सकता है, 40 में भी आ सकता है और कई कई लोगों को 70 तक भी नहीं आता है। लेकिन जब आता है तो वो बुरी तरीके से आता है। ये जो जो मिड लाइफ एंड करियर क्राइसिस जो बोलते हैं, जब आता है तो बुरी तरीके से आता है, और जब आता है तब आपका जो आत्मविश्वास है वो सबसे कम होता है।
जो ईगल के साथ भी होता है, लेकिन ईगल के पास जैसे दो ऑप्शन है, अपने पास भी दो ऑप्शन है। नेक्स्ट, अपने पास भी दो ऑप्शन है, डू और डाई। सो इट्स टाइम टू री इंजीनियर योर लाइफ। जैसे ईगल ने अपने लाइफ को री इंजीनियर किया, वैसे ही हमको भी अपनी लाइफ को री इंजीनियर करना पड़ेगा। और उस टाइम में हमें दो ही सिचुएशन है, डू और डाई। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए ना, कि कभी ना कभी तो आपने अपने जीवन में ये सिचुएशन फेस किया होगा ना, डू और डाई। जैसे मुझे तो पता है, मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकला था तो मेरे पास यही दो ऑप्शन थे, डू और डाई। या तो पैसे कमाओ या भूखे रहो, दो ही ऑप्शन थे। तो हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आती ही है, डू और डाई, है ना। तो डू और डाई सिचुएशन, लेकिन क्या होता है कि एक बार अपना करियर सेट हो जाता है, फिर हम बार बार फेस नहीं करना चाहते। और खास करके मिड लाइफ क्राइसिस में तो we try to avoid this particular situation called do or die. Why? Because we don't want to pass through that painful process what eagle passed for a re-engineering their life. Next. So let us set the context. तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? जैसे ईगल ने अपना कॉन्टेक्स्ट सेट किया, जब उसको डिसीजन आया कि अब उसको जीना है या मरना है। अगर जीना है तो चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए वो पर्वत की टोच पे जाके बैठ जाता है 150 दिनों के लिए। तो जब भी आपको ये जो मैं वॉट एवर आई एम नरेटिंग एज ए मिड लाइफ क्राइसिस, और ये आना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो मिड लाइफ क्राइसिस फील नहीं होता है, तब तक बदलाव नहीं आता है। और जैसे मैंने बताया कि वो जो मिड लाइफ क्राइसिस जीवन में आता है, तो उसका एज के साथ इतना कोई फिक्स्ड फिक्स्ड नंबर नहीं है कि ये 40 में ही आता है या 30 में आता है या 50 में आता है। वो कभी भी आ सकता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो कॉलेज कर रहे हैं तभी दे आर फेसिंग द मिड लाइफ क्राइसिस। मतलब वो उब चुके होते हैं जीवन से कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, या कैसे करेंगे, अब हमारे पास तो कोई स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, क्या करेंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो, जैसे हम बोलते हैं ना, बाल मृत्यु, वो बचपन में ही मौत हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है, मिड लाइफ क्राइसिस यू फेस एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। और 30 में भी ये हो सकता है, 40 में भी ये हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, और 70 में भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल। लेकिन जब भी आपको ये प्रॉब्लम लगे, मिड लाइफ क्राइसिस वाला, जो मैंने वो आपको सब बताया, वो सब सिम्टम्स दिखे आपके जीवन में, है ना, कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हो, आप अपने फैमिली के लिए अपनी पोटेंशियल को फुलेस्ट यूज करके कुछ और नया नया नहीं देना चाहते हैं। जब आपको लोग ऐसे ही लाइटली लेने लगते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स नहीं रहते हैं, ये सब जो चीजें होती है, या तो आपको अब ये ऐसा लगता है मैं छोड़ छाड़ के कहीं पे चला जाऊं, ये सब प्रॉब्लम्स अभी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या तो यू मे एडिक्टेड टू द रॉन्ग हैबिट्स। मतलब आपको अब बिना शराब के जीवन नहीं गुजर रहा है, या बिना इन सब चीजों के आपका जीवन नहीं गुजर रहा है। मतलब प्रॉब्लम यही है, मिड लाइफ क्राइसिस। इंडिया में जैसे आपने देखा ना, ये कोरोना में शराब की दुकानों पे ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी? वो लंबी लंबी लाइनें इसीलिए लगी कि दोज पीपल कुड नॉट मैनेज द मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस एक कोविड 19 से भी एक बड़ा खतरनाक डिजीज है, जो हमारे देश में लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये कैसे खा रहा है देश को। तो जब वो मिड लाइफ क्राइसिस आपको खाने के लिए बैठा है, और आप उसको अगर मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप शराब पीते हो, आप ऐसी ऐसी चीजें करते हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, वो आपकी बर्बादी होगी। मौत ऐसा नहीं है कि एक पल में और एक दिन में आती है, वो आती है धीरे धीरे, चुपके चुपके आती है। और जिस दिन आपने अपने आजू बाजू की चीजों में कुछ नयापन, कुछ चेंजेस लाना बंद कर दिया, आपकी मौत वहीं से स्टार्ट होती है।
तो अब करना क्या है ये मिड लाइफ क्राइसिस में? ये मिड लाइफ क्राइसिस में अभी ये सबसे अच्छा है, यूनिवर्सिटी में तो 20 जून तक एक मतलब वेकेशन डिक्लेयर कर दिया है, और लॉकडाउन, फोर्थ लॉकडाउन की भी बात चल रही है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। और अभी भी आपने लॉकडाउन 1 2 3 में भी बहुत कुछ सोचा होगा, इंट्रोस्पेक्शन किया होगा। तो उसमें चाहिए स्टिलनेस, मतलब एक ठहराव चाहिए। अब वो ठहराव कितने दिनों के लिए चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि जैसे ईगल के केस में तो 150 दिन का ठहराव चाहिए। अब आपके केस में कितने दिनों का ठहराव चाहिए, इसका जवाब तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। नेक्स्ट, in the midst of a movement and chaos, keep stillness inside you। ये दीपक चोपड़ा ने बोला है, राइट? इन अ मिड्स ऑफ अ मूवमेंट एंड chaos, keep stillness inside of you। मतलब अभी अपने आजू बाजू जो भी चल रहा है या जो भी चलेगा, और मिड लाइफ क्राइसिस तो है ही, और कहीं कहीं बार तो ये कोविड ही मिड लाइफ क्राइसिस ला के रख देगा जीवन के सामने। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, एंड एक ठहराव चाहिए। यू मस्ट कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। व्हाट ईगल एग्जैक्टली डू, ईगल क्या करता है, पर्वत की टोच पे जाके बैठ जाता है और अपने आप को वो एक 150 दिन देता है। अब अपने पास भी यही करना है कि हमको ये करना है। जैसे एक वो एक है ना कि कभी कभी मैं तूफानों के बीच में अपने आप को पाता हूँ, कभी कभी मैं तूफानों के बीच में अपने आप को पाता हूँ, और कभी कभी तूफानों के बीच में मैं अपने आप को पाता हूँ। तो अब तूफान तो दोनों है, कहीं कहीं लोगों का तो हर दिन तूफान है, और कहीं कहीं लोगों को तो तूफान में वो क्या है उसकी पहचान होती है। तो ये स्टिलनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, true intelligence operates silently। Stillness is where creativity and solution to a problem are found। तो स्टिलनेस ठहराव क्या है, जैसे ईगल ने ठहराव पसंद किया, तो वो क्या है, तो उसमें यू क्रिएटिवली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट? एंड मेक यू रियली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, सो एट लास्ट लेट अस डिस्कस द थ्री मेन सॉल्यूशन applicable to our life also, what eagle exactly did। सो पहला सॉल्यूशन ईगल ने क्या किया, ईगल पिक अ रॉक until its beak is completely worn away। अपनी चोंच को वो तोड़ डालता है। तो इंसान को क्या करना है, स्टार्ट थिंक फ्रॉम अ जीरो, अवॉइड ऑब्स्टेकल्स ऑफ ओल्ड assumptions एंड फॉल्स बिलीफ। जैसे उसने अपने अपनी चोंच को तोड़ डाला, इंसान को क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जैसे पर्वत की टोच पे बैठ जाता है, ये सबको सब कुछ पीछे वाला छोड़ के जीरो से सोच के अपनी जो पुरानी सब बिलीफ्स और अजम्पशंस है उसको पहले छोड़ देना है। मेक योरसेल्फ फ्री फ्रॉम रॉन्ग बिलीफ्स एंड अजम्पशंस, ब्रेक देम ऑल। डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम बट बी अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब वो प्रॉब्लम के बारे में ही आप सोचते रहोगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस अब कई कई बार तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए भी प्रॉब्लम से हटके उस प्रॉब्लम को दूर से देखने की जरूरत होती है। लेकिन हम करते क्या है, हम उस प्रॉब्लम के बवंडर में ही गोल गोल घूमते रहते हैं, उस बवंडर से बाहर निकल के दूर से उस प्रॉब्लम को देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसीलिए उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो हमें करना क्या है, we don't need to be a part of a problem, but let us lift ourselves from the problem and then try to see the problem, what is the root of a problem, and try to solve the problem। Next, दूसरा solution ईगल ने क्या किया था, after waiting for its beak to renew, the eagle then pluck out its all talon। मतलब अपने वो नाखून को काट देता है। तो हमको क्या करना है, cultivate a new habits and prepare a new schedule। Don't rely on a old knowledge and skill, so re-skill yourself। हमें क्या करना पड़ेगा, नई जो स्किल है, बदलते जमाने के साथ जो नई नई तकनीक या नई नई चीजें आई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जैसे बिल गेट्स ने बोला था, है ना, कि री इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, री इंजीनियरिंग का यही मतलब है कि अपनी जो कोर कॉम्पिटेंस है उससे जुड़े रहे और बाकी की सब चीजें आउटसोर्स कर रहे हैं।
तो अपनी जो कोर कॉम्पिटेंस, कोर स्किल है उससे जुड़े रहे, और बाकी की जो चीज है वो यू कैन आउटसोर्स फ्रॉम द यंगस्टर्स लाइक दिव्यांग भाई। अभी मैं 40 का हो चुका, दिव्यांग भाई अभी यंग है, ही नोज एवरीथिंग टेक्निकल, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा एक नेटवर्क डेवलप करना है कि मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंस से जुड़ा रहूं, लेकिन जो चीजें मेरी लिमिट से बाहर है या मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मैं आउटसोर्स करवा सकूं या किसी से मदद लेके भी कर सकूं। तो दैट इज व्हाट यू रिमेन फोकस टू योर skill, and you can also join and collaborate with the other people. Next, and the last solution what eagle did, right? When its new talon emerged, the eagle start blocking its time worn feeder. जो बेकार की चीजें है वो तोड़ डालता है। जब आप फोकस करते हो तो बेकार की चीजें ऑटोमेटिकली ही चली जाती है, right? When you start focusing, the unnecessary and useless priority already killed with your new schedule and with your new plan and mission. So delete your unnecessary and useless priorities, kill them all. अपने आप ही उसका स्वाहा कर दो। एक बार अपने आप वो सब स्वाहा हो जाएगा, फिर खत्म। Forget all emotional old baggages. जो भी पुराने इमोशनल बैगेजेस है वो सब आप भूल जाओ कि उसने मेरा इंसल्ट किया था, नहीं ये हो गया ना, ये हो गया ना, ये गलती हो गई। अगर वो सब भूल जाएंगे तो री इंजीनियरिंग एक्चुअली स्टार्ट होगा। सो कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड रिचार्ज योर सेल्फ। सबसे ज्यादा रिचार्जिंग की जरूरत होती है, जैसे ईगल ने अपने आप को रिचार्ज किया। सो दिस आर द 3 सॉल्यूशन अडॉप्टेड बाय द ईगल। एंड ह्यूमन लाइफ में जब ये मिड लाइफ क्राइसिस आती है तो उसको क्या करना होता है, ये भी हमने एज अ पार्ट ऑफ री इंजीनियरिंग देखा। नेक्स्ट, सो डज इट हैपन स्मूथली? मतलब ईगल के केस में भी वो पेनफुल है, अपने केस में भी पेनफुल होगा, तो ये स्मूथली होगा? नहीं, ये स्मूथली नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? चूज द राइट कंपनी। मतलब आपके आजू बाजू जो भी लोग हैं वो कैसे है, आपका नेटवर्क कैसा है, वो आप थोड़ा देखो। आपका आपका नेटवर्क अगर सेम है जो लास्ट 40 साल से है, तो 40 के बाद जो भी साल आएंगे उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। भगीरथ भाई ने एक अपने सेशन में बहुत अच्छी बात बोली है कि आपकी एवरेज सैलरी कभी आपके ग्रुप्स की एवरेज सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकती है। योर इनकम कैन नेवर बी हायर देन द एवरेज सैलरी ऑफ योर ग्रुप। तो आप हायर एवरेज ग्रुप की इनकम के साथ बात करना, कोलैबोरेट करना शुरू करोगे तो ही तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये कंपनी वाली बात है। फिर स्पेंड टाइम फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, जैसे इसीलिए हम फ्राइडे फॉरम चला रहे हैं। रीस्टार्ट एंड रीइंफोर्स हैबिट ऑफ रीडिंग। अपनी जो रीडिंग की हैबिट है उसको थोड़ा और बढ़ाइए, उसको अलग तरीके से शुरू कीजिए। डाइवर्सिफाइड रीडिंग करिए। जेसीआई, आई थिंक जेसीआई मिल्क सिटी ने ये स्टार्ट किया है, अच्छा किया है। उन लोगों ने एक वो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है ई बुक के लिए, तो आप भगीरथ भाई को ज्यादा उसके बारे में पूछ सकते हैं। मतलब इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव। फिर चेंज द गियर। मतलब कई लोग क्या होता है, दे कुड नेवर गियर अप देयर लाइफ। मतलब एक गियर में अपनी लाइफ की गाड़ी चलाते हैं, फिर दूसरे में कभी शिफ्ट ही नहीं करते, दूसरे के बाद तीसरे में शिफ्ट ही नहीं करते, तीसरे के बाद चौथे में शिफ्ट करने के लिए तो वो डरते हैं। तो इसीलिए यू हैव टू चेंज द गियर ऑफ योर लाइफ। स्किल अप एंड स्केल अप। जो भी आपकी स्किल या आपका डोमेन है, जो भी आप काम करते हैं, उसको थोड़ा स्किल अप कीजिए, स्केल अप कीजिए। चेंज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत ही जरूरी है। अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अपने फ्रेम, आप ओल्ड रेफरेंस से नई चीजों को नापने की कोशिश करोगे तो मिड लाइफ क्राइसिस आप ना मानते हुए और ना जानते हुए भी आपके जीवन में है और आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लर्न टू बी साइलेंट एंड स्टिल बट डायनामिक इन एक्शन। थिंक एंड वर्क फॉर एक्सटेंडेड लार्जर पर्पस ऑफ अ लाइफ। मतलब सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं। अभी आप साधन संपन्न हो चुके हैं, अब आप एक एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति है, तो अब आप थोड़ा आगे सोचिए, अपने पर्पस को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, अपनी लाइफ को थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए कि आप परिवार के लिए या समाज के लिए या दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं।
Next, so patience in the mind and dynamism in a action is the right formula to re-engineer life. तो एक तो धीरज चाहिए और दूसरा डायनेमिज्म इन एक्शन। धीरज ऐसी नहीं चाहिए कि अभी मैंने तो संन्यास ले चुके हैं, अभी आई वांट कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। कंप्लीट पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट साथ साथ में डायनेमिज्म इन एक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। બે કદમ છેટું હતું પણ ત્યાં જતા વર્ષો થયા। બે કદમ છેટું હતું પણ ત્યાં જતા વર્ષો થયા। મનથી શ્રદ્ધાથી ખરેખર ઝુકતા વર્ષો થયા। બંધ રહેવાની મથામણમાં દુખી દંભી થયા। બંધ રહેવાની મથામણમાં દુખી દંભી થયા। ખુલવું સહેલું હતું પણ ખુલતા વર્ષો થયા। એક ઝટકે જાય છૂટી એ જ છે ખરું મશ્કિન, છોડવું કોને હતું તે છૂટતા વર્ષો થયા। તો મિડ લાઈફ ક્રાઇસિસમાં પણ આ જ ડાયલેમા છે। અમુક વસ્તુ છોડવી પડે, અમુક વસ્તુ ખુલીને એક્સપ્રેસ કરવી પડે, અમુક જાત સાથે સંવાદ કરવો પડે, અને આ બધું જો યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતના થાય તો રીએન્જિનિયરિંગ ચોક્કસ આપણે જીવનમાં થાય અને આપણું જીવન खूब જ सुंदर बनी रहे। जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जीता है, जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जीता है, लेकिन जियो जिंदगी ऐसे कि औरों के होठों की मुस्कान बन जाए। तो अपने जीवन को औरों की मुस्कान बनाने के लिए थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा, अपनी लाइफ को री इंजीनियर करना पड़ेगा। और ईगल ने जो ये 3 स्टेप्स प्रोसेस थ्रू अपने जीवन को री इंजीनियर किया, वैसे ही मैंने आपको अपने जीवन में कैसे उसको रिलेट करके कर सकते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर अ डिस्कशन। आप अपने भी कोई विचार है तो रख सकते हैं। Anyone who want to share anything can mute himself or herself and speak, please. हाँ, ये तो मतलब री इंजीनियर में ऐसे जो भी whatever comes from my thoughts I shared with you, right? लेकिन अरे Good evening, sir. I have one question to ask. Yes, please. Sir, as you said, no, that we should change our group and we should be going to one level above us. Okay. So the same line, I have one question, that when we try to do this, most of the time these people don't accept us, or we fail to express ourselves and we are not connected. So can you suggest some good steps? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर मतलब मैं खुद बोलूं कि ये आप जैसे बोल रहे हैं वो कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना वो कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े बेसिक प्रिंसिपल से वो काम आते हैं। जैसे आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना? ये दिस इज अ यूनिवर्सल बेसिक प्रिंसिपल्स, है ना? हाँ, तो अब जब आप अब जो थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो अपने जोन में है तो वो आपको इजीली अपने जोन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट, है ना? तो कई बार क्या होता है, अगर सामने वाला रैशनल है, सामने वाला सेंसिबल पर्सन है, तो वो शुरू में जब आपको नहीं जानता है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा। परफेक्ट। जैसे आपने गुड न्यूज करके मूवी देखा है, अक्षय कुमार और वो वाला? यस सर। हाँ, तो गुड न्यूज मूवी में क्या होता है कि वो जो पंजाब से आते हैं, हरियाणा से, है ना? राइट। वो अक्षय कुमार क्या बोलता है, इसको तो मैं मतलब कभी एक्सेप्ट ना करूं, है ना? राइट सर। तो वो अपनी सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। परफेक्ट। फिर बाद में क्या होता है, जब उसको सही में पता चलता है ना कि ये इंसान तो अच्छा है, मतलब राइट, तो फिर उसको वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसको एक्सेप्ट करते हैं।
Perfect. हाँ, लेकिन कई बार सामने आपको उस मतलब आपके बड़े वाले ग्रुप में ऐसे भी लोग हो गए जो वो लोग ही गड़बड़ वाले हैं, Perfect. तो उसका सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा, आपके साथ नहीं, सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा, अपने फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम होगा। Right, sir. Right. तो ऐसे लोगों के साथ टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है, Right, sir. अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आता है। Perfect. मैंने देखा है, मतलब मेरी एज से पहले ही, मतलब नॉट फ्रॉम एट द एज ऑफ 40, पर पहले से जो 60 के बाद के जो भी लोग थे उसके मेरे साथ बहुत अच्छी बनती है, आज भी बनती है और पहले भी बनती थी। अब उसके जैसे मैंने ऐसे बोला, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो वो होगा और आपको उसके पास सीखने को भी मिलेगा। Perfect, sir. और एक एक चीज क्या होती है, देखो मैं लाइंस में था, तो लाइंस में क्या होता है, एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स इज अराउंड 65 इयर्स। Okay. और 65 इयर्स की एज में वो सब है ना, दे आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल, राइट, रिसोर्सफुल पीपल। Right. तो उसमें क्या होता है, अपने को अपनी वैल्यू एडिशन ढूंढनी पड़ती है। जैसे उन लोगों को, जैसे टेक्नोलॉजी, अभी एक हमारे बहुत सीनियर थे, उनको जूम पे मीटिंग करनी थी, अब उसको पता नहीं कैसे करना है, तो बोले तुम राठौड़ ये कर दोगे? मैंने कहा ठीक है, मैं सर कर दूंगा। इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन एंड वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। Right, sir. तो वो अपना एक थोड़ा वैल्यू गैप भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है ना, Right, sir. तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन वो सामने वाला अगर मतलब यू आर ऑलवेज गिविंग एंड यू आर नॉट गेटिंग, देन बी केयरफुल। Right, sir. हाँ, यस। लेकिन ये जो मिड लाइफ क्राइसिस में बात कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको बोलूं बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है अपने देश में, उसकी खुल के बात भी नहीं होती है, लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है। Sir, I have the same line of the question, sir. Can I ask? हम्म हम्म सर, ये जो मिड लाइन क्राइसिस रहते हैं, बाई चांस इफ वी हम्म हैव समबडी हु इज सराउंडेड विथ अस एंड हु हैज फॉल इनटू दिस, तो हम्म। सर कोई स्टेप्स है तो उनको उसमें से बाहर लेके आए। वी माइट दैट इट माइट बी अ एजुकेटेड पर्सन, क्वालिफाइड, बट सर वो मिड लेवल क्राइसिस में चले गए हो, तो एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड, कैन वी हेल्प टू टेक देम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? अच्छा, जो स्वामी विवेकानंद विरल क्या बोलते थे कि you cannot find the solution of a problem unless you accept I have a problem। राइट सर। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तब तक वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। परफेक्ट सर। तो 70% तो प्रॉब्लम यही होता है कि उसको लगता ही नहीं है प्रॉब्लम है। हाँ सर, वही कन्विंस करवाना ही बहुत डिफिकल्ट होता है कि ही इज इन द रॉन्ग ट्रैक। हाँ, वो कन्विंस करवाना ही डिफिकल्ट होता है ना। तो राइट सर। अब तक वो खुद मन से नहीं मानेंगे मेरा मिड लाइफ क्राइसिस प्रॉब्लम है, राइट, तब तक हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसमें रिजल्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने समझा दिया और समझ गए, है ना। वो अपने राइट मन सर। से ही अगर वो करेंगे, तो जैसे ईगल कोई किसी से पूछने थोड़ी गया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, राइट सर। उसको तो खुद ही वो समझ में आना चाहिए ना। परफेक्ट। हाँ, उसके साथ हम मतलब बात कर सकते हैं, जैसे आपने उसको ये पीपीटी दे दी, और स्टेप का तो मैंने आपको बताया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पुरानी चीजें छोड़नी है, नई चीजें सीखनी है। जैसे एल्विन टफलर ने बोला है ना, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। राइट सर। तो प्रोसेस तो सिंपल ही है, उसमें कोई, लेकिन उसको मन से वो अगर एक बार एक्सेप्ट कर ले कि ये है, और बाद में फिर कोशिश करे, तो ये होगा ना। परफेक्ट सर। हम्म। थैंक यू। हाँ, और कोई है जो मिड लाइफ क्राइसिस जो समझता है कि नहीं उसका खुद का ये प्रॉब्लम है, मिड लाइफ क्राइसिस? ऐसा नहीं है, मैं आई आल्सो फेस द मिड लाइफ क्राइसिस प्रॉब्लम, लेकिन मिड लाइफ क्राइसिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ऐसे मानना भी चाहिए, और उसके बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि जितना मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में इंसान ज्यादा सोचेगा, वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। Hello, Raju bhai. Kinjal here. यस, किंजल मैडम बोलिए। Good evening. गुड इवनिंग। Congratulations for yet another wonderful presentation. It's always a treat to listen to you. I just had two very quick submissions to make in this wonderful thoughts that you have shared already. दो प्लीज। चीजें यहाँ पे
to add on. One is a very important principle that comes though from finance, but we can really implement it in our lives, is do not put all your eggs in one basket. Yes. And economics, we have a concept called occupational mobility. Yes. Because we are so stereotype in India in Yes. saying कि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो बस मुझे पूरी जिंदगी उस एक ही डिग्री से कमाते रहना चाहिए. मैं और additional Yes, नहीं, madam. I am not wasting my time. But that's a very wrong thing to do. Don't put all your eggs in the same basket. So we should always be open to learn new things. Like I'll quote, my grandfather was a mines manager. At the age of around between 45 and 50, he suffered from spondylitis, and he was so motivated at that time that he converted and became a doctor. So at the age of just below 50, he was ready to learn the degree for doctorate, and he completed his doctorate. Don't put all your eggs in the same basket, one. And two, because I research on higher education, there's one very unique thing about higher education sector, that it is counter-cyclical. So in the economy, when there is recession, higher education should be and is at boom. Like, we in the government jobs, we are in a very different scenario and a different mindset. But those of us who are working in the private sector, what can happen is, anyways, the jobs are not very much rewarding, and you keep feeling depressed about it, that I'm not earning enough. A better idea, rather than feeling that depression and wasting your time, your opportunity cost is too high. So rather invest it in learning, upskilling yourself, and as you were rightly saying, sharpen your talents and come out with a new beat. So rather than feeling depressed, you would have always in job work felt कि ये एक skill होती तो I would have earned better. So this is the time, appropriate time for you to take a back seat and probably start doing things. That's what's probably happening in the private sector. If you love photography, invest your time in doing that. Become a professional photographer. Explore your skills. Don't put all your eggs in the same basket. Learn newer things. Explore newer opportunities. Yeah. Thank you. Yes, true. दो चीजें हैं मैडम उसमें. एक अभी हमने वो टॉपिक वी हैव नॉट टच दैट टॉपिक, लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट वाली बात है ना, जो डेवलप कंट्रीज का जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो फंडामेंटल्स है वो अलग है, और अपने यहाँ पोस्ट रिटायरमेंट को पूरा अलग तरीके से लिया जाता है ना. तो पोस्ट रिटायरमेंट में जो आप जैसे बोल रहे हैं ना, हाँ, मिड टर्म क्राइसिस तो है ही, लेकिन बाद में जो ये पोस्ट रिटायरमेंट में ना, मिड टर्म क्राइसिस में जब नई चीज नहीं करते हैं तो वो रिटायरमेंट भी तो बिगड़ता ही है ना आगे जाके. हाँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम आप मतलब जो बात कर रहे हैं एकदम सही है, कि एक तो जैसे इसीलिए मैंने बोला ना कि आउट ऑफ बॉक्स और कंफर्ट जोन से हटके कुछ नया सीखना है कि नहीं, और वो अगर 40 मतलब मिड लाइफ क्राइसिस से ही अगर वो शुरू करेंगे तो जीवन में थोड़ी उसको ज्यादा विविधता मिलेगी ना. they will get a different flavor in your life, and that's why they will not be exhausted and obsolete. हाँ, एक ये है. और दूसरी चीज जो आपने बोला ना कि हायर एजुकेशन में जो ग्रांटेड एड डिपार्टमेंट में या कॉलेजेस में होते हैं, उसका माइंडसेट और उसका जो कॉन्टेक्स्ट अलग होता है. आई फुली एग्री विथ यू, लेकिन उसमें मैं एज ए सोल्यूशन आई वांट टू से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. वो एक मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होता है जिससे मतलब दे नेवर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब के, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं. या तो they always aspire to work in a government department and the colleges, right? और अगर हम देखा जाए तो ऐसे कई बार ऐसे होता है ना, जैसे सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी क्यों करनी है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है. तो लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना है. हाँ, तो अभी ये मतलब ये हो गया है. अभी ये अपने इंडिया में ही वो सिस्टमेटिक सिस्टम यूटोपिया जिसको बोलते हैं वैसा हो गया, तो थोड़ा मुश्किल है. लेकिन मैं तो भी वो जो यंगस्टर्स है उसको यही बोलूंगा कि यू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अगर मैं
हाँ, अगर मैं प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में काम कर रहा हूँ और मुझे 25,000 मिल रहे हैं सपोज, तो मैं अगर अपनी कंपैरिजन किसी प्रोफेसर के साथ करूंगा तो वो तो मुझे कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो आंगनबाड़ी का कोई बहन जी वर्क कर रही है और पूरा महीना काम करने के बाद उसे 5,000 ही मिलते हैं, है ना, और वो जितना काम कर रहे हैं इतना ये लोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसको 25,000 मिल रहे हैं। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और स्किल पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी तो देखो कि अगर आप में स्किल है तो नो बडी स्टॉप यू, मतलब आपको अगर आपको लगता है कि आपके स्किल के हिसाब से उस कॉलेज में आपको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है या पूरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो यू ऑलवेज हैव अपॉर्चुनिटी टू लीव एंड गो फॉर अ बेटर प्रोस्पेक्टिव थिंग्स, है ना। अब नरेंद्र मोदी चाय बेच रहे थे, तो अगर चाय बेच के वो खुश रहते तो कभी प्रधानमंत्री बनते ही नहीं ना। तो अब बाकी तो कई बच्चे हैं आज भी चाय बेच रहे हैं। हर कोई तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो घटित हुआ होगा ना उसके अंदर। यस। ओके, सो shall we stop, दिव्यांग भाई? Yes, sir. Yeah, thank you, Raju bhai, for the Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you to all for joining and have a nice discussion. I'll be sharing this PPT with all of you, and then you can further keep thinking on this particular topic and keep discussing on this particular topic. Thank you very Thank you so much. much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.